sometimes changing your address changes the entire story. Hello everyone, this is Mitali and with me I have Palak and welcome to our second episode of Spill the Raita. हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था हमारे बारे में और इस चैनल के बारे में. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीलोकेशन. हाँ जी, so we all relocate for different purposes, चाहे वो वर्क के लिए हो, चाहे वो अपने करियर के लिए हो, चाहे मैरिज पर्पस के लिए हो. एंड वी हैव ऑल बीन देयर. जब भी हमने हमारा एड्रेस चेंज किया है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट, हमारी पूरी कहानी ही बदल गई है लाइफ की. एंड वी हैव ऑलवेज बीन मेड टू एडजस्ट इन अ न्यू सराउंडिंग. सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. Yeah. So I'll tell you my story. The first time I relocated was officially relocation जिसको बोलते हैं was when I was 17 years old. जब मैं अपना घर छोड़ के पुणे आई थी to do my graduation. That was the first time I relocated and I was हाँ मैं से जाती रहती थी to play tournaments or everything and it was a very short duration जिसके लिए मैं जाती थी but I would come back. This was the first time जब मैं अपने घर से निकली हूँ for good 3 years that I thought. और अभी देखा जाए तो around 8 to 9 years हो चुके हैं and I have relocated in different cities and I have never went back home. हाँ मैं थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ just to like relax and chill and to like find your roots again. But again I start relocating and I start shifting from one city to another. What about you? Yeah, When was the exactly. first? So yes, so I relocated for my higher education. I'm from Udaipur and I relocated to Pune. And I had a very difficult time to adjust with the new set of people. And since I'm an introvert, I often felt that I was misunderstood by people at many point of time. And but it was kind of a struggle for me because we all have different personalities, and sometimes when the personality clashes and you're not able to vibe with the people around you, and your life becomes terrible. And this is what I faced as well. And later on I met Mitali, so things went a little smoother. Because what happens कि आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे आप है ना जिससे आप आपको एक अपनापन सा लगे, आपको लगे कि नहीं, आई एम नॉट अलोन हियर. बिकॉज जनरली व्हेन यू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी यू फील लोनली, यू मिस योर फैमिली, आपको होम सिकनेस होती है, कभी आपको कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता है, कहीं का कल्चर समझ में नहीं आता है, कहीं पे पीयर प्रेशर होता है. तो ये सारी की सारी चीजें हैं. And the second relocation was when I got married. I shifted to Gurgaon. I'm married in Banaras. So Banaras is a totally different environment. Wahan pe you cannot wear the your choice of clothes. You have to stick to the वहाँ पे जो भी कल्चर है उस तरीके से आपको ढलना पड़ता है. तो आई थिंक हर एक लड़की रिलेट कर पा रही होगी कि शादी के बाद, स्पेशली इफ इट इज एन इंटरकल्चरल मैरिज एंड इफ इट्स अ लव मैरिज, तो आपका हस्बैंड तो सपोर्ट कर ही देता है, फैमिलीज भी करती है, इन लॉज, बट आपको खुद को बदलना पड़ता है टू एडजस्ट योरसेल्फ इन अ न्यू सराउंडिंग. एंड वी ऑल हैव बीन देयर, मुझे ऐसा लगता है. या जैसे आपने अभी बोला कि you are an introvert and you were an introvert back then also and still you were facing so many challenges. Trust me when I say this कि मैं एक extrovert हूँ. I used to like talking about anything that used to come into my head. कुछ भी, there was nothing that was in my heart. But even then I also faced a lot of challenges. People misunderstood कि भाई ये सब कुछ क्यों बोल देती है, ये कुछ अपने तक क्यों नहीं रखती है, कैसी मुंहफट है, क्यों बोलते. सो लाइक पीपल स्टार्ट जजमेंट, ऐसा जजमेंट वगैरह आता रहता है, कांस्टेंट जजमेंट आता रहता है. सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ कि हाँ इसके सामने बोल सकते हैं, इसके सामने नहीं बोल सकते. बिकॉज वेन वी कम फ्रॉम जो फैमिली हमारी है बैकग्राउंड वहाँ पे, उसमें हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू शेयर थिंग्स विद योर सेल्फ एंड द पीपल हु आर अराउंड यू. एंड आई थॉट कि हाँ सेम चीज वैसे ही करनी होती है व्हेन यू गो आउट. बट ऐसा नहीं है एंड इट वाज अ वेरी बिग शॉक फॉर मी. एंड देन आई हैड टू लाइक हाँ अच्छा यहाँ पे इतना बोलना है, यहाँ पे इतना बोलना है, यहाँ पे इतना बोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हो. सो इट ऑल्सो टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि किस इंसान से कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है. एंड एग्जैक्टली. not everyone is interested also. ट्रू ट्रू.
And then of course you don't have to overshare as well. This is a very important point कि क्या होता है कि हम ओवरशेयर करने लग जाते हैं, अपनी पूरी कहानी बताने लग जाते हैं लोगों को, अपनी पर्सनल चीजें, जैसे मैं ऐसी रही हूँ, मुझे कभी भी किसी के साथ फील होता है कि ओके, शी इज माय गो टू पर्सन, एंड तो मैं सब बता देती हूँ। लेटर रियलाइज कि यार इतना नहीं शेयर करना चाहिए अपने बारे में, बिकॉज इट कैन बैकफायर यू, एंड इट हैज बैकफायर्ड मी। उस टाइम पे you are in that zone, you feel comfortable and the other person is also comforting you, so you feel कि हाँ it felt good, but you don't realize कि 2 3 4 6 months, 1 year, 10 years down the line, this person might misuse the information that has been shared with you. So one needs to trust that पहले तो bond create करो, पहले test करो उस bond को, and then you should start sharing. The same thing happened with us also. We were very similar, we are still very similar, पर हम हर कुछ नहीं बताते हैं. फर्स्ट हम एक चीज पे ओपिनियन लेते हैं कि मिताली या पलक कैसा है ये, तेरे को क्या लगता है, एंड देन वी टेल द स्टोरी कि हमने ये तुमसे ऐसे पूछा, नाउ दिस इज द बैक स्टोरी. सो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा ये है कि किसी को भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, यू हैव टू कीप थिंग्स टू योरसेल्फ, एंड अगर आपको शेयर करना ही है देन योर फैमिली इज जस्ट अ कॉल अवे। भले आप डिफरेंट सिटी में है, यू कैन कॉल अप योर सिस्टर, यू कैन कॉल अप योर मदर, एंड यू कैन डिस्कस विद देम कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है। एंड दूसरा चीज विच आई फेस्ड आउट ऑफ, मतलब एक तो ये था, दूसरा चीज जो मैंने फेस किया है was the change in the food and the cuisine that I was having. So I come from a Kashmiri Pandit family. We have different masalas, different जो dishes वगैरह होती हैं जो. But when I came to Pune, when I came to Maharashtra, वहाँ पे the food was very different. Even though सब कुछ सेम है, मसाले सेम है ऑलमोस्ट, जो आपके इंग्रेडिएंट्स है जो आपको सब्जी बनाने में लगेंगे वो भी सेम है, बट उसमें कंफर्टेबल होने में भी आपको टाइम लगता है टू फिगर आउट कि हाँ व्हाट इज गोइंग टू सूट योर बॉडी, व्हाट इज गोइंग टू सूट योर टेस्ट बड्स. दैट इज व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग घर का खाना। फिर अपन को रियलाइज होता है कि यार, क्योंकि आप हर कोई मेस के खाने से बोर हो ही जाता है, वहां पे वो टेस्ट नहीं आता है जो मम्मी घर पे बनाती थी। तो दैट इज व्हेन यू रियलाइज, एंड कुछ लोगों को होम सिकनेस भी हो जाती है। मेरे साथ सेम ऐसा पुणे में हुआ था। व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई वाज मिसिंग माय फैमिली टेरिबली। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, आई वांट टू एस्केप, फटाफट ये कोर्स खत्म हो, आई वांट टू गो बैक। So that is when my course finally got over, I rushed like anything, like back to my hometown. And वो जो मेरा comfort zone वहाँ पे था ना, like मुझे ऐसा लग रहा था ना बाहर I was so vulnerable, you know. मुझे ऐसा लगता था कि as if people are judging me constantly, या मैं overthink भी ज्यादा करती हूँ, तो मुझे लगता था कि oh what are they thinking about me, oh are they talking about me, and कभी कभी वो चीज भी हो जाती थी मेरे साथ। या इनफैक्ट हमारे जो कॉलेज था वहाँ पे एक, मतलब आई लाइक दिस वेरी, इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग, वी वर अ बैच ऑफ 120 पीपल, out of which 50% of the students they were from outside and 50% were from India only. So yeah, 60 students, 60 70 around, they were Indian, and rest were like NRI और जो ये बाहर वाले लोग हैं जिनका वो सब, they joined us. तो लोगों को ये ना लगे कि ये बाहर से आए हैं, दे डोंट नो मच. सो इन आवर कॉलेज वी हैड दिस सिस्टम जहाँ पे जैसे लोकल गार्डियन होता है, वैसे ही वी हैड अ लोकल स्टूडेंट ऑल्सो. सो दिस लोकल स्टूडेंट was attached to 5 students of the batch जो बॉम्बे या फिर पुणे के होते थे, उनके साथ मोस्टली होता है, सो दैट दीज पीपल कैन हेल्प दीज पीपल कि अरे ये यहाँ पे है, ये वहाँ पे करने के लिए तुम जा सकते हैं. एंड वी वुड आल्सो हैव द गैदरिंग. ये जो 5, एक जो इंसान था जो स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट था, इसको ये जो 5 लोग थे इनको आप घर पे इनवाइट कर सकते हो, सो दैट दे आर नॉट हैविंग होम सिकनेस, सो दैट दे फील वेलकम, इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल होने के लिए. That's really like because आजकल क्या है कि सब लोग अपने लाइफ के साथ इतना रश कर रहे हैं कि अब टाइम ही नहीं है किसी के पास सोचने के लिए कि यार कि इफ somebody is feeling isolated, या किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं कोई देख रहा है या कोई बात कर रहा है, so there are very few people who make you feel welcomed, who like बाकी लोग तो फॉर्मेलिटी ही करते रह जाते हैं कि हाँ हाँ you are with us, but like warmth feeling नहीं हो पाती है। हाँ, इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग. जैसे अभी हम खाने का डिस्कस कर रहे हैं ना,
So also why we are spending too much time on food is because both of us are like hardcore foodies. We like enjoying food and talking about food. तो मेरे साथ स्टार्टिंग में ये इशू हो रहा था कि मेस में तो पर्टिकुलर टाइम होता है खाने का, हमारे घर पे तो कभी भी मूड आके चले गए किचन में, खाना खा लिया, खाना तो होता ही है। अब मुझे ये शिफ्ट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि आप 5 मिनट भी लेट, 2 मिनट 5 मिनट भी लेट आओ तो खाना उठ जाता था। सो टू कम इन टू दैट ग्रिड कि हाँ 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक रात को आपको खाना मिलेगा, सुबह 7:30 से लेके सुबह 9:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, 12:30 से 2 बजे तक लंच मिलेगा, 4 से 5 बजे आपको स्नैक्स मिलेगा। We used to rush accordingly. My classes used to get over at I think 4:30. everybody used to, because they knew that the food will get over or the timing will just, everybody knew that. Remember our Sundays जब हम लोग सुबह सुबह जाते थे और मेस में एकदम भाग के, अरे यार सोने दो, बट नहीं, आधी नींद में ब्रश करके हम लोग जाते थे just to have those eggs. Yes, बहुत yes. So बहुत there ऐसा used to होता be था। long queue and देखो हॉस्टल लाइफ में मजा आता है, लेकिन देखो हर जगह कुछ अपने चैलेंजेस तो हैं ही हैं। हाँ एंड अगर बिल्कुल। आपका सोशल सर्कल सपोर्टिव है, मुझे लगता है अगर इफ यू आर एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स इन अ न्यू एनवायरनमेंट, योर लाइफ बिकम्स इजियर। हाउएवर फॉर समबडी हु इज नॉट एबल टू, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो हर समय लोगों के साथ होते हैं लेकिन फिर भी वो अकेला फील करता है। Yeah. And it is not मतलब normally ऐसा भी होता है, just because you have people around you does not mean कि you have them। कभी कभी आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हो। ट्रू ट्रू। तो अभी वैसे ही है, जैसे हम अभी रिलोकेशन की बात करें, नाउ आई एम इन हैदराबाद, यू आर इन गुड़गांव। तो यहाँ बेशक मैं पुणे में थी, फॉर मी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम जम्मू टू पुणे इट वाज अ बिग शिफ्ट। Coming from Pune to Hyderabad, which is not even 500 kilometers, 600 kilometers का difference, it is also a very big shift यहाँ पे, because the language is different, uh, the style of people, like जिस तरीके से वो काम करते हैं, body language, that is different, food is different, even though biryani is here, that is our favorite, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत वैरायटी है उसकी, but या इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट जैसे ही आप शिफ्ट करते हो। एंड आई फील कि बहुत सारे लोग जैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग। right now I am constantly moving either because of studies or because of the opportunities। तो वैसे ही बहुत सारे लोग भी होते हैं, so they don't try to like get attached to the city ज्यादा। what do you think? एग्जैक्टली। You get attached to a city? You should not get attached to any city, any company, people, whosoever. Family से देखो attachment होता है, वो by birth है, ठीक है? Your mother raised you, your parents raised you, you are attached to your sibling, you are attached to your husband. वो normal है, it's a part of it, like. But Yeah. किसी से attach यूं नहीं होना है कि because you are not, because we are humans, we are kind of nomads. We are nomads, like we are traveling from place to place, we are seeking good opportunities। कोई अब्रॉड भी चला जाता है, आप सोचिए कोई एलियन लैंड में है, वहां पे वो अपनी फैमिली से कितना दूर है, वहां पे भी जाके वो अपने ही इंडियंस को ढूंढेंगे कि कोई अपना मिल जाए, कुछ इंडियन फूड मिल जाए को अपने। हाँ, सो हम हर जगह एक अपनापन सा ढूंढते हैं, और लेकिन सबको वो मिल नहीं पाता है, और जब नहीं मिल पाता है, that is when they feel कि यार मैं क्यों आ गई, and then they want to go back or maybe they want to escape। तो वो फीलिंग जो है वो मतलब काफी आपको परेशान करती है। And also for us, when we start traveling, मैं अपने personal experience से बात कर रही हूँ, when we start traveling, we don't remember, we create a lot of memories, and then we start associating that particular city or the state with that memory। Like if I talk about Hyderabad, I will always remember it as a place where I worked for the first time. So it will have that memory for me। बेशक जो भी सारी चीजें अलग हुई, that is different, but the main core memory is this। So if 10 years, 20 years down the line, someone will say Hyderabad, and then I will go into the flashback। So जब हम ऐसा करते हैं, तो हम memories जो create करते जाते हैं। राइट राइट, आई कैन टोटली रिलेट। जहां तक हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बिकॉज चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो, चाहे अपनी
फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है, स्पेशली लाइक लाइफ आफ्टर मैरिज। एवरी गर्ल कैन रिलेट कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू वर्क योर वे। आप एक नई फैमिली में जा रहे हो, आपको उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ का कल्चर है, यू कैन नॉट से कि मैं ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं कर पाती एंड ऑल। एंड इफ यू डू दैट तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो बट आई थिंक लाइक women should keep their point कि this is how I feel, because मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स बताने में कोई हर्ज नहीं, if you have the right choice of words। अगर आप बहुत कामली पेशेंटली अपनी बात रखेंगे तो दूसरे भी समझेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि यू डोंट वेट फॉर अदर्स कि आप दूसरे आपको वेलकमिंग फील करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, यूज टू फील कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, nobody is maybe understanding my perspective or talking to me। and when I started a very like a casual conversation with them, that is when I realized कि नहीं, ऐसा नहीं है। so कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन जैसी होती नहीं वैसी आपको लगती है। so you have to train your brain in any सर्कमस्टांस या इन एनी सराउंडिंग जो आपसे फेमिलियर नहीं है। क्योंकि देखो घर में तो पेरेंट्स सुनने को होते हैं, आपको कुछ भी लगेगा, जस्ट गो रशिंग टू योर मदर कि यार मम्मी ऐसे ऐसे, यू कीप जस्ट ranting कि ऐसा हो रहा है। आप बाहर किसी को कोई सुनने नहीं बैठा है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु वुड गिव यू अ लैंडिंग ईयर कि हाँ चलो ठीक है, कि हाँ ओके व्हाट आर यू फीलिंग, यू टेल मी। ओके, सो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि मैं कैसे कोप करती हूँ इस चीज से, मैं आई इंडल्ज इन सेल्फ टॉक। मैं खुद को समझाती हूँ, इन व्हेन आई एम अलोन आई ट्राई टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज द सिचुएशन कि ये कैसे बेटर हो सकता था। मान लीजिए कि कुछ बात होगी, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन होगी, बिकॉज वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, ट्रू, वर्ड्स आप फिर से वापस नहीं ले सकते। तो फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि ओ ये इस तरीके से अनफोल्ड होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, राइट? बिकॉज Yeah. क्या होता है कि लास्टिंग इम्प्रेशंस रह जाते हैं। अगर आप कुछ जाने अनजाने में आउट ऑफ इनोसेंस भी कुछ आप बोल देते हैं, ठीक है, बी इट एट वर्क प्लेस, चाहे आप वर्क प्लेस पे बोल देते हैं किसी को, या फिर आप अपने स्पेशली इन लॉज अगर आप बोल देते हैं, बिकॉज देखो अपनी फैमिली तो अपनी होती है। जब आप अपने फैमिली में होते हो तो यू कैन ऑलवेज लाइक, वो बात इतनी कोई स्ट्रेच नहीं करता है, क्योंकि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव थॉट हर किसी का होता है। बट द एंटायर वर्ल्ड इज नॉट देयर टू अंडरस्टैंड यू। आपको अपनी जगह खुद बनानी है। Yeah, in fact, I will tell you what I do personally जब मैं relocate करती हूँ, और if I am finding out कि हाँ मुझे किस type के लोगों के साथ जाना, I will go on solo dates. I will go for solo movies. I will go for solo lunches, dinners, randomly mall में जाना, just to like see. And sometimes it is important that you just sit and observe people around कि वो क्या कर रहे हैं. It will help you to learn. आपको समझ आएगा कि आपको किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से रहना है. So I feel that is what I do. In fact, today also I have a movie for later in the evening. जैसे ही हमारा आज का ही शूट खत्म हो जाएगा, I will go at around 4:35. Enjoy a movie. Yeah, and you know what? It is very weird. In fact, you also keep asking me कि यार मिताली तू ऐसे अकेले क्यों जाती है, तेरे को वियर्ड नहीं लगता? आपको याद होगा स्टार्टिंग में आप मुझे पूछते रहते थे बहुत ज्यादा. And people at my work also, they keep asking कि भाई तू अकेले क्यों जा रही है. So Sometimes मिताली will book a table for herself, मतलब वो ऐसी, she is like bold personality, वो दूसरों का वेट नहीं करती है। और मैं ऐसी हूँ कि आई एम लाइक मेरे साथ कोई चल नहीं रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक लर्निंग लेसन ये है कि यू जस्ट बी देयर फॉर योरसेल्फ, है ना? yeah, अगर आप उस टाइम पे आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, चाहे वो क्या कोई इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, सो आई थिंक आपसे बेहतर आपका कोई सपोर्ट नहीं हो सकता है ना? yeah. मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप यू जस्ट वेंचर आउट, आप एक फिल्म देखने चले गए, या फिर आपने डांस कर लिया। जैसे मैं डांस कर लेती हूँ अगर मेरा कभी मन खराब होता है या कुछ भी, सो जस्ट टू फॉरगेट इट। एंड सो like Mitali goes for, like she mentioned, she's a solo bird and she goes for solo dates. She doesn't need a boy. She's all by, उसको क्या है, उसको यूं भी है कि सारा खाना मैं खा लूंगी शायद। It could be that also. So yeah. Sometimes I end up making some holes in my pocket if I am going alone
for restaurants and restaurant hopping, या फिर ऐसे movies वगैरह, but it is a nice experience. Sometimes you just want to sit back and relax and think कि हाँ, what next you are supposed to do. Sometimes that time with yourself will help you more than having time with people. True. Right. So, with this, we have come to an end of today's podcast. I hope you all have enjoyed it. थोड़ा सा personal था. We started off with relocation. It was also because that is how we both ended up meeting each other. So that is why we wanted to start from there. Please tell us in the comment section कि आपको आज का ये podcast कैसा लगा. What next would you like us to talk about? We would be very happy to see your suggestions and recommendations. एग्जैक्टली और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट से रिलेट कर पाए हों कि हाँ यार ये चीज मेरे साथ भी हुई थी एंड यू नो लाइक आपके साथ आपका वर्जन योर वर्जन ऑफ द स्टोरी लाइक वी वुड लाइक टू नो सो इफ यू पार्टिसिपेट इन द कमेंट्स वी विल रिप्लाई यू बैक एंड वी वुड लव टू सी योर कमेंट्स कि आप हमसे एंगेज हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जैसा कि मिताली ने कहा जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करें सो वी विल ब्रिंग अप दैट एंड वी विल फीचर यू एज वेल. Thank you so much everyone for giving your time Thank to you. us. Okay, bye.